सरस्वती नहीं आएगी जैसे सुबह तो दिखे थे। हाँ मैं ऊपर भी दिखा दूंगा रूम नहीं, मैं जब आई थी और फिर वापस कोई कह रहा था मास्क मिल रहे हैं तो मैं गई थी ना, तब 11 बजे नीचे दिखे थे साइन का। अरे क्यों रमेश की 2 4 दिन को हाँ, आए तो है, साइन है, मतलब रजिस्टर में हूँ। नहीं, साइन तो है महावीर जी। वॉइस इज ऑडिबल बेटा? आंचल, मनदीप, शिवांगी, सिद्धार्थ, वंदना। Okay, basically from morning college net is not working, so I tried with the hotspot and all, but distraction is coming like at instant. Now just we complete the topic. Wait a minute. So just flow चला गया एक बार वापस. I am recalling you in a very short way manner. We started with a participation, okay, and participation in the CMOS circuitry is of 3 types: static, dynamic, and short circuit. Fine. Short circuit is power dissipation is due to the leakage current and other current drawn continuously from the power supply, whereas my dynamic dissipation is due to the switching transient current, that is a charging and discharging of load capacitance. ठीक है. स्टैटिक की जहाँ तक बात आती है, सो दैट पर्टिकुलरली हम जब स्टैटिक करंट भी इवल्यूएट करते हैं फॉर एनी सीमोस सर्किटरी, वी कंसीडर दैट माय डिवाइस इज ऑन ऑफ स्टेट, देयर इज नो सप्लाई और देयर इज अ सप्लाई बट देयर इज नो इनपुट गिवन टू दैट पर्टिकुलर सर्किटरी. सो इन दैट जो लीकेज करंट मेरा इवल्यूएट होता है, दैट इज IS EQV अपॉन KT माइनस 1. सो इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट, डायोड वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू ये रहती है. एंड दिस विल में माय फाइनल फॉर्मूला of the static power dissipation, where n considered to be number of devices. Secondly, and its value generally comes out to be like we must say for 5 volt के लिए 1 or 2 nanowatt. ठीक है. Second, dynamic power dissipation due to the rise and fall time of particularly circuitry. This is a particular dissipation when I am applying input to my circuitry and my circuit is working, charging and discharging, all process is going to be there. Repetition time is TP and repetition frequency is going to be FP. So power dissipation जब हम evaluate करेंगे, so this is going to be the formula. एंड IN जो है एन डिवाइस ट्रांजिएंट करंट होगा और IP जो होगा तुम्हारा P डिवाइस ट्रांजिएंट करंट. ठीक है. CL is a load capacitance. If I will replace the particular IN with this, so CL ये मैंने बता दिया था. फाइनल फॉर्मूला हमारा जो रहता है, दैट इज CL VDD का स्क्वायर अपॉन TP. एंड अगर हम रिपीटेशन फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो इस तरह से ये है. फाइन. नाउ कम्स आउट टू बी शॉर्ट सर्किट पावर डिसिपेशन. सो शॉर्ट सर्किट पावर डिसिपेशन इज द आई मीन VDD. आई मीन की वैल्यू ये रहती है. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन एंड V in की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे VDD T upon TR. So the final value which you taken out from the short circuit power dissipation is beta upon 12 VDD minus twice of VT 3 TRF upon TP. ठीक है. Now all the 3 power dissipation has been evaluated. इसके डेरिवेशन तुम्हें और बेटर वे में अगर नेट पे या बुक में मिले, सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक, तो तुम देखना उसको.
Now finally जो total power dissipation होती है, that is nothing but the sum of three this dissipation component, that is PS plus PD plus PSC. So when we calculate power dissipation, the rule of thumb is to add all the capacitance operating at the particular frequency to evaluate the power, and the power from the other group operating at the different frequency may be summed. So this is the P total, that is PS plus PD plus PSC. ठीक है? So dynamic power dissipation can be used to estimate the total power consumption, as the size of VDD and VSS of the conductor is to minimize the transient induced voltages. And for the complex circuitry, it is impractical to calculate the power dissipation. So following approximation accuracy is going to be there. मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट रहते हैं, उनके लिए हम फिर इस तरह के कुछ इवल्यूशंस करते हैं. कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ड्रिवन बाय द गेट आउटपुट इन द सर्किट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्टिमेट द परसेंटेज एक्टिविटी ऑफ द सर्किट at the maximum clock frequency, that using equation we can calculate the dynamic power like percentage activity multiplied by C total VDD ka square upon T3. That is in this percentage activity is going to be required. Second is a partition the circuit into the smaller parts where the activity factor can be calculated more accurately and repeated. These are the particular clause when I am discussing or resolving a complex circuit. Okay, fine, we can instead of that, for dynamic power dissipation, apart from C total VDD ka square upon TP, percentage activity is also going to be matter. And some simulators में ये होता है, that is ability to be modify the total capacitance switch by each. That is very important, that you need to be keep in mind. Total capacitance switch by each switch on each node over the course of simulation run. After any simulation is run, total number of clock cycles that have been simulated by using the conjunction with the capacitance is C total switch VDD का स्क्वायर, C total switch VDD का स्क्वायर अपॉन क्या लेंगे हम, total number of cycle multiply by TP. ठीक है? You can write down this formula. ये वाला फॉर्मूला स्विच लेवल के यूज होगा. ठीक है? Now that's it, the power dissipation. One more topic used to come, power economy. What we mean by power economy? The large project where the designers are involved in the design of modules that go into the large chip or the low power applications. So that we use the power budget. So what we mean by power budget? It is a power dissipation that the module cannot exceed. It is then the job of designer to meet this constraint. Okay, so power economy is nothing but the okay. Now the final topic comes out to be इसको अपन थोड़ा सा introductory part I am discussing and then final designing अपन कल start करेंगे इसकी. ठीक है? CMOS logic circuit. Is it clear बेटा? Power dissipation clear है? Static, dynamic and short circuit power. Sometime numerical used to come. I have given in assignment, I suppose. Currently I am not giving second assignment. I am just waiting your first midterm to be take place. After that I will give. ठीक है? Now CMOS logic circuits जो है, इसके बेसिक्स को अपन देख लेते हैं. मेन डिजाइनिंग अपन कल करेंगे. एज वी डन ट्रांसमिशन गेट, बिफोर ट्रांसमिशन गेट अगर ये तुम्हारा हो जाता तो वो तुम्हें और क्लियर समझ में आता. बट यहाँ पर हम जो भी तुम्हारे लॉजिक सर्किट्स है उसकी डिजाइनिंग मॉस के थ्रू देखेंगे. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन योर लैब
also. That is why I started first of all VHDL, थोड़ा easy भी रहता है लैब में. सेकेंडली उसके बाद जब अपन सिलेबस में भी चलते हैं तो यहाँ तक आते आते हमारा पर्टिकुलरली वहाँ पर भी लेआउट स्टार्ट हो जाए. ठीक है. सो जनरली हाई मतलब 1 अगर है मॉस में तो उसे हम हाई वोल्टेज कंसीडर करते हैं. दैट इज अ वैल्यू 1.5 to 15 वोल्ट. ठीक है. और 0 मीन्स लो वोल्टेज रहता है और दैट इज गोइंग टू कंसीडर एज अ ग्राउंड GND और VSS. Here it is considered to be power, PWR or VD. ठीक है. This is a NMOS inverter switch. Now हम here each switch will act as an inverter. So first one जो है वो तुम्हारा NMOS है. So this is from here I will give you time and you need to be draw because हर एक का सर्किट बनाओ. use copy pen so that this particular symbol is going to be clear. You can draw NMOS inverter like this also. This is a drain source and this is a gate. And another way you can make this AB and switch. So this is my NMOS inverter switch. बनाओ इसे. ठीक है. Now how the NMOS inverter switch act, that working is important. Like when S is 0, when I am giving gate voltage or a signal voltage 0, in that time the NMOS invert will act as an open circuit. Open circuit means good 0. And when it is 1, it will act as a closed circuit and we will get the poor one. ठीक है. That is a conventional NMOS. Now comes out to be PMOS. इसको बना लो तुम, बनाओ या इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो. दैट इज इम्पॉर्टेंट. वाई अभी नहीं पता चल रहा है. कल अपन जब इससे अपन एंड गेट और गेट और ये सब डिजाइन करेंगे. दैट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ योर लाइक VLSI. फर्स्ट पार्ट था VHDL प्रोग्रामिंग जो तुम लैब में भी कर रहे हो एंड थ्योरी आई मेड यू कंप्लीट. दिस इज अ सेकेंड पार्ट वेयर हम अब डिजाइनिंग पे आ रहे हैं. और इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज Tenor ADA 16.2 विच वी हैव परचेज्ड एंड TechCube 2. दैट इज पर्टिकुलरली नॉट सेम लाइक योर मल्टीसी मल्टीपोर्ट जिस पे तुमने काम किया है. बट हाँ जैसे वहां पर भी मल्टीसी मल्टीपोर्ट में तुम कंपोनेंट सेलेक्ट करके माउंट करते हो फिर कनेक्शन करते हो वायर में. दैट इज एग्जैक्टली सेम हियर. बट हियर वी नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ W/L एंड देयर आर सर्टन चेंजेस इन दिस. ठीक है. सेकेंड इज PMOS इन्वर्टर एज अ स्विच. इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं P लिखकर. और यहाँ पर भी बबल आता है वो मिसिंग है. और यहाँ इसके सिंबल में भी NMOS में बबल नहीं आएगा और PMOS में वो बबल आ जाएगा. ठीक है. इसकी जो वर्क बना लो. S जब 0 रहता है in case of PMOS inverter, so it acts as a closed loop and it gives you poor 0. and when 1 रहेगा तो open circuit की तरह act करेगा. ठीक है. and good 1 it is going to be. What we mean by poor 0, good 1, that I will explain you when we will design the circuit. Poor 0 का meaning रहता है very near to the 0. Good 1 का meaning रहता है higher chances of 1 like 9.99, 0.92, 0.89 like that.
ठीक है. Now comes out to be CMOS inverter. बना रहे हो तुम लोग? Draw this. These are very useful. बेटा. Now here is a CMOS inverter. CMOS inverters में सी एक तो मेन जो सिंबल ये वाला रहता है, एंड इन दिस पी और एनमॉस जो रहता है, एनमॉस और पीमॉस दोनों को कॉमन हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं. दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. सिंबल में इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसे. अनदर वे, अगर पी और एन फॉर्म में मैं लेती हूँ तो ये एन है, ये पी है, इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, वीसीसी वीजीजी. ठीक है. एंड हियर ऑल्सो दिस इज इनपुट, ये आउटपुट आ गया, और ये वाला थोड़ा सही नहीं है, लीव इट. ये वाला, ये तीनों देखो. ठीक है, बना लो इनको. मेनली तो वैसे ये दोनों बनाओ. ये वाला सर्किट जो है ये तो तुम्हारा कॉमनली एनमॉस में भी ऐसे यूज होगा, सीमॉस में भी ऐसे यूज होगा, और पीमॉस में भी. इट शोज एज अ इन्वर्टर. ठीक है, बना लिया. इट्स गुड. So AND switch is known to be pull down and P switch is known to be pull up. ठीक है. This type of configurations that is consist of the enhancement type PMOS operating in the complementary mode. Both the transistor which we are using in a CMOS is of enhancement type. NMOS transistor drives the output node while the PMOS transistor act as a loop. ठीक है. Now, अभी कितना टाइम हो गया? एक आध सर्किट मैं तुम्हें बता देती हूँ. देन आई एम बेसिकली ये तो क्लियर हो गया. इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज अ एनमॉस डिजाइनिंग यूजिंग NAND. मेनली तुम्हें एग्जाम में वैसे तो सीमॉस ही पूछा जाता है, बट वंस और ट्वाइस आई चेक द VLSI पेपर. Sometimes they used to say design the particular circuit by using NMOS inverter. So generally उनका एग्जामिनर का यही कहना रहता है कि तीनों तरह के स्विचेस हैं. We didn't tell you कि only CMOS डिजाइनिंग आएगा. So particularly NAND गेट अगर मुझे NMOS से बनाना है, so एक पर्टिकुलर कंसेप्ट इसमें यह है कि NMOS में when two component connected in series तो वहाँ AND ऑपरेशन है. ठीक है. ग्रेजुअली जैसे जैसे रूल्स मतलब डिजाइनिंग आएगी, आई विल टेल यू रूल्स, बिकॉज मेनी अ टाइम व्हाट आई डिड, आई एक्सप्लेन ऑल द रूल्स बिफोर द डिजाइनिंग एंड स्टूडेंट यूज टू गेट कंफ्यूज. सो नाउ फ्रॉम लास्ट 2-3 years आई अप्लाइड दिस पॉलिसी दैट वट एवर कंसेप्ट यूज टू कम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रोसेस विल डू. ठीक है. सो ए और बी हो गया, ए डॉट बी, एंड ये तुम्हारा दोनों एनहांसमेंट मोड रहते हैं. और एनमॉस में जब भी हम डिजाइन करते हैं तो जो नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ते हैं वो हम एनहांसमेंट टाइप से लेते हैं, और ऊपर डिप्लीशन का एक ही ट्रांजिस्टर है दैट इज गोइंग टू बी देयर एंड दैट इज गोइंग टू इन्वर्ट इट. जैसे ए डॉट बी और एनमॉस में जब भी हम कुछ भी ऑपरेट करेंगे तो वो आउटपुट में इन्वर्ट होकर ही मिलता है. तो ए डॉट बी का बार. ठीक है. और इसकी ये ट्रुथ टेबल दी हुई है. फाइन. सेम सर्किट से सपोज मुझे एंड गेट बनाना हो, सो व्हाट विल बी द फॉर्मेट. जैसे ए डॉट बी का बार हमें यहाँ मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिला, ए और बी का बार. तो अगर मैं एक और इन्वर्टर इसमें आगे लगा दूं तो ये बार हट जाएगा. सो ये दिस वाज माय सिंपली NAND गेट. I connected the output of NAND gate to another input that is acting as NMOS inverter. So this is my circuit NMOS inverter. ठीक है. तो ये ए डॉट बी का बार इसमें गया तो सिर्फ ये बार को ओमिट करेगा. सो ये ए डॉट बी आ गया. सो अगर एनमॉस से यूज करके एंड गेट नैंड गेट डिजाइनिंग पूछी जाती है, सो दिस इज अ वे that first we will design NAND gate and then we will invert, that is going to give you AND. ठीक है. This is the last topic I am discussing, that is AND operation and OR operation.
whenever I need to perform AND operation in a PMOS, I need to connect both the PMOSes in series. ठीक है? And for a parallel combination और ऑपरेट होगा. जब भी मैं दो एनमॉसेस को पैरेलल में कनेक्ट करूंगी तो वो क्या ऑपरेट करेगा? और गेट. मीन्स इस तरह से जब भी दो एनमॉसेस कनेक्ट हैं सो दे विल एक्ट एज और ऑपरेशन. जो टेबल को एक्सप्लेन किया फर्दर. सो अगर नॉर गेट की डिजाइनिंग पूछी जाती है सो सेम सर्किट में अगर एनमॉस से नॉर गेट बनाओ ऐसा बोला है तो जो दो सर्किट सीरीज में थे वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. सो इट इज गोइंग टू गिव यू a प्लस b. तो यहाँ हो गया, यहाँ से आउटपुट में आएगा तो इसमें 12. सेम इसमें वही है. अगर और गेट पूछा है तो मैं इसके आउटपुट को कनेक्ट कर दूंगी फर्दर एक इन्वर्टर से तो ये a प्लस बी का b आ जाएगा. यहाँ पर a प्लस बी का बार है और यहाँ a प्लस बी आ जाएगा. अब सीमॉस इन्वर्टर से नैंड गेट कैसे बनाते हैं ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फ्रॉम हियर विथ कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, तुमने और गेट और एंड गेट यूजिंग एनमॉस बना लिया क्या? हैव यू मेड इट और शुड आई ऑन इट व्हाइल टेकिंग अटेंडेंस? एंड और गेट और नहीं बनाया है सो जस्ट इन्फॉर्म मी. सो आई विल जस्ट क्लिक दैट स्लाइड. पहले तो ये जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ ये वाला बना. आंचल, भावना, प्रेजेंट मैम. मनदीप. आंचल प्रेजेंट मैम. ओके बेटा. मनदीप प्रेजेंट मैम. वंदना, सिद्धार्थ, शिवांगी. प्रेजेंट मैम. ओके ये बना लो. और गेट डिजाइनिंग मेनली तो सीमॉस पूछी जाती है बट इन केस कभी एनमॉस से पूछ लिया जाए तो उसके लिए तुम्हें आना चाहिए. बना लिया कि ये बेटा? ये तुम्हारा डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर है. इसको इस तरह से ब्रॉड करना और ये तीनों जो नीचे हैं ये एनहांसमेंट मोड. ओके फाइन. और एंड गेट बना लिया था क्या? ये बेसिक तुम्हें एनमॉस से डिजाइनिंग आनी चाहिए देन इट इज गोइंग टू यूजफुल फॉर फर्दर. ये रहा है. स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी है. Okay, see you tomorrow by 10:50. Tomorrow we'll start. ठीक है.